شروع کریں شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے کی آج کی جو کڑی ہے، اس کڑی میں چند مسائل بڑے اہم ہمارے سامنے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایسا بھی ہوگا کہ یہ سوالات دوبارہ پھر کچھ اختلاف کے ساتھ آگے بھی آئیں، کچھ باتوں کا اضافہ ہو اس میں، یا کچھ ملتے جلتے سوالات ہوں، تو ان سوالات میں، ان کے جوابات میں اور مزید تفصیل بھی آئے گی۔ اس لیے کہیں یہ باتیں مختصر ہیں اور کہیں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گی، یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت سوالات کی ترتیب میں سوال نمبر 4 ہے۔ اس سوال نمبر 4 میں آپ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے جدید مناہج سے متعلق ہی یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس دور میں دنیا کے مختلف گوشوں میں ان فرقوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں جنہیں اسلامی جماعتیں کہا جاتا ہے۔ آخر اس نام کی کیا بنیاد ہے، اور اگر ان کے یہاں بدعت نہ پائی جاتی ہو تو کیا ان کے ساتھ جانا اور اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ اب یہ سوال ایسا سوال ہے اس دور کا جو آج کل عام طور پر اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ نوجوان اکثر و بیشتر یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان اسلامی جماعتوں کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ رہ کر کے دعوت کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات عام طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں، اور وہ سوالات اہل علم کے سامنے بھی آتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں دو باتیں خاص طور پر سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامی جماعتیں جن کو کہا جا رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ اسلامی جماعتیں، جماعت کیا اسلام کے اندر جمع ہے کہیں بھی؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ ربی بن ہادی بن عمیر المدخلی حافظہ اللہ بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ سے بہرحال دعا ہے، درخواست ہے کہ آپ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، جن کو عالم من اعلام السنہ، سنت کی مطلب ایک اعلیٰ اور ایک بلند شخصیت کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں ساری دنیا میں۔ ان کا ایک رسالہ ہے جماعت لا جماعات، ایک جماعت، بہت ساری جماعتیں نہیں، ایک جماعت ہے، بہت ساری جماعتیں نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے رسالے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال اسلامی جماعت، ایک جماعت جس کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، جس کو اہل السنہ کہتے ہیں، یا اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، یا جس کو الجماعہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کیا اور بھی جماعتوں کا کوئی تصور اسلام کے اندر ہے؟ اگر کوئی تصور ہوگا تبھی اسلامی جماعتیں یہ تعبیر درست ہوگی، ورنہ یہ تعبیر درست نہیں ہوگی۔ پھر وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی جس میں اللہ کے نبی نے فرقے کہا ہے۔ فرقوں کو ہم اگر آج جماعتوں کا نام دیں گے تو اس تعبیر میں بہت ساری گڑبڑیاں، بہت ساری غلطیاں آ جائیں گی۔ تو ایک بات تو یہ اس سوال کے جواب میں ہمیں شیخ صالح فوزان سے ملے گا، جواب ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کے یہاں بدعت نہ پائی جاتی ہو تو کیا ان کے ساتھ جانا اور شریک ہونا درست ہے یا نہیں درست ہے؟ یہ دونوں ہی باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا اور کھول کھول کر سمجھا دیا ہے کہ کیسے عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی نکتہ بچا نہیں ہے جس کی وضاحت اللہ کے نبی نے زندگی میں کر نہ دی ہو۔ وفات سے پہلے کوئی بات چھوٹی سی بھی باقی بچ گئی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔
जब तक कोई मसला बाकी था, कोई नुक्ता बाकी था, मामूली सी भी रहनुमाई अगर रही हो, तो उसको बताने के बाद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से वफात हुई है। ये बहुत ही अहम मसला है। मा तरककुम मा माता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बादमा तरककुम अला तरीक़तिन नाहिजा। गालिबन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु या इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये असर है। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफात उस वक्त तक नहीं हुई जब तक कि तुम्हें अल्लाह के नबी ने एक रोशन रास्ते पर नहीं छोड़ दिया। और ये तो उसूलों की बात है, ये तो बुनियाद की चीज है, जड़ है इस्लाम की। तो ये मसला कैसे कोई, इस मसले में कैसे कोई नुक्ता छूट सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आपने हर चीज को खोल खोल करके समझा दिया है कि कैसे अमल करें। आपने अपनी उम्मत को अल्लाह से करीब करने वाली और इसी तरह उन्हें अल्लाह से दूर करने वाली हर हर बात खोल कर बतला दी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस की तरफ इशारा किया है शेख हफिज़हुल्लाह ने, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाहि इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी जो तुम्हें अल्लाह से करीब करने वाली हो छोड़ा नहीं है, मैंने उसका ज़रूर तुम्हें हुक्म दे दिया है कि ये काम करो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह से करीब होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इसकी तरफ इशारा किया है। कहते हैं इन्हीं मसाइल में से, इन्हीं में से यानी कोई भी चीज़ जो वाजिब थी, जन्नत से करीब करने वाली थी, अल्लाह के नबी ने बतलाया है, छोड़ा नहीं है, हुक्म दिया है उसका। उन्हीं में से एक हुक्म ये भी है, एक बात ये भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरे बाद तुम में से जो जिंदा रहेगा बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। अब ये हदीस हमें खुद, ये टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ हमें इस बात की रहनुमाई करता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे, मेरे बाद तुम में से जो जिंदा रहेगा बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। तो जमाअत यानी अल्लाह की कलाम, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर चलने वाले सहाबे किराम की फिक्र, फहम, उनकी समझ, उनका तरीका, ये तो अपनी जगह पर तय है। इसको बतला दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद आप कहते हैं मेरे बाद तुम में से जो जिंदा रहेंगे बहुत सारा इख्तलाफ देखेंगे। तो अब इस्लाम में जिनको कहा जा रहा है इस्लामी जमातें, यानी मुख्तलिफ अंदाज की यूनिट्स बनी हुई हैं, जिनको लोगों ने इस्लाम से जोड़ा हुआ है। फला इस्लामी जमात, फला इस्लामी जमात, फला इस्लामी जमात, फला इस्लामी जमात, इस तरह से इस्लाम से जोड़ करके लोगों ने मुख्तलिफ धड़े बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ है ना टोलियां खड़ी की हुई हैं, मुख्तलिफ गिरोह बनाए हुए हैं। तो ये जो इस्लामी जमाअतों की जो इस्तिलाह है, यानी इस्लामी जमाअतें जिनको कहा जाता है, ये ताबीर दुरुस्त ही नहीं है, ये नाम सही ही नहीं है। बल्कि इसका सही नाम क्या बनेगा? इसका सही नाम अल्लाह के नबी की इस हदीस की रोशनी में इख्तिलाफ कसीर, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ इसका नाम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इख्तिलाफ का हिस्सा है। हाँ, अगर नामों का इख्तिलाफ सिर्फ जाहिरी नामों का इख्तिलाफ है, मिशन वही है जो अल्लाह की किताब का है, जो नबी की सुन्नत का है, सहाबे किराम का है, सलफ का है, तो फिर नामों के इख्तिलाफ से कोई फर्क नहीं है। मिसाल के तौर पर आज दुनिया में किताब सुन्नत मनहज सलफ पर चलने वालों के मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ नाम है। ये नाम सिफाती भी हैं, और उसके अलावा आज दुनिया का जो निज़ाम है कि हर मुल्क के अंदर लोग अपने अपने तारुफ के लिए है ना कोई रजिस्ट्रेशन है मिसाल के तौर पर, या अपनी शनाख्त के लिए कोई नाम रखना ज़रूरी होता है। तो इस एतबार से नामों का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये मिशन किताब का, सुन्नत का, सलफ़ उम्मत के तरीक़े और मनहज का, ये चीज़ अगर है तो नामों के इख्तिलाफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अलग से अगर कोई धड़ा बनाए, उसका कोई नाम रखे, अलग से धड़ा बनाए, उसका कोई नाम रखे, उसमें किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ़ सालिहीन का मनहज वैसे न फॉलो किया जाता हो जैसे किया जाना चाहिए, तो इसको इस्लामी जमात नहीं कहा जा सकता। सही ताबीर के मुताबिक इस्लामी जमात नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लामी जमात है जो हक पर जमने वाले हैं। यहां याद रहे कि जमात का मतलब एक तादाद, बड़ी तादाद है ना, और गैदरिंग या भीड़ या एक से ज्यादा, इस माने में नहीं है। जमात का माना जो है वो ये है
کہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام کے تابعین، تبع تابعین جو خیر القرون، ان کی فقہ اور ان کے فہم پر ڈٹے رہنے والے، اسی پر جمے رہنے والے، یہی ایک جماعت ہے جس کو صحیح معنوں میں جماعت اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں کہا گیا ہے۔ اب اس سے جو بھی ہٹے گا وہ لاکھ اپنے نام کے ساتھ اسلامی لگائے، جماعت لگائے، اسلامی لگائے، جماعت لگائے، کوئی بھی فائدہ اس سے ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسلامی جماعتوں کا تصور ہی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلامی جماعت ایک جماعت ہے جو جماعت اسلام ہے، جماعت المسلمین ہے، جماعت صحابہ ہے، جماعت سنت ہے، جماعت قرآن ہے، قرآن سنت صحابہ کے طریقے پر ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے، اسی پر قائم رہنے والے، یہی ہے جس کو اسلام کے اندر۔ اچھا، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اتنی سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، رسول بنا کر کے بھیجے گئے، قرآن کریم اترا، قرآن کریم کی آیتیں اللہ کے نبی پڑھ کر کے سناتے تھے، اس کے معانی سمجھاتے تھے، عمل کرنے والی چیزوں کو عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اسی چیز کو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور عمل کیا، پریکٹیکل، اور اسی چیز کو آگے امت تک پہنچایا۔ تو یہی جو تھا نا، یہی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے سامنے جو کچھ پیش کرتے رہے، اسی پر جو بھی لوگ قائم تھے، ہے نا، اس دور میں، اس کے بعد کے ادوار میں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، آج 14ویں، 15ویں، 17ویں، قیامت تک اس پر جو لوگ ڈٹے رہیں گے وہی ایک جماعت ہے۔ یعنی اسی پر ڈٹے رہنے والوں کو ہی جماعت کہا جاتا ہے، چاہے زمانہ کتنا بھی لمبا پھیل جائے، دور تک چلا جائے، آبادی دنیا کی کتنی بھی زیادہ بڑھ جائے، لیکن بھیڑ کا نام نہیں ہے۔ تعداد اس مشن پر، اس راستے پر چلنے والوں کی 1 ہو، 2 ہو، 10 ہو، 5 ہو، 100 ہو، 200 ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہت زیادہ کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے، کہ ساری دنیا میں جتنے فرقے، جتنی ٹولیاں، جتنے دھڑے ہیں، ان سب میں سب سے کم تعداد انہی لوگوں کی ہے جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تو تعداد نہیں مقصد، جماعت کا مطلب ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ اس سے مراد تعداد ہے، نہیں، جماعت جمع ہونے کے معنی میں ہے، یعنی اسی منہج پر، اسی راستے پر ڈٹے رہنے والے، اسی پر اکٹھا ہونے والے، اسی پر متفق رہنے والے، یہ ہے جماعت کا معنی۔ کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اکیلا ایک آدمی ہو، ساری قوم الگ الگ راستے پر چل رہی ہو، 25 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو، 100 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو، ہے نا، پورا ملک بٹا ہوا ہو، ایک آدمی اس راستے پر چل رہا ہو، تو جماعت یہی کہلائے گا۔ یہ بقیہ سب کے سب چاہے کتنی بھی بڑی تعداد میں ہو، کوئی جماعت کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو جماعت کا تصور واضح ہو جانا چاہیے۔ جماعت بھیڑ کا نام نہیں ہے، گیدرنگ کا نام نہیں ہے، ایک بڑے جتھے کا نام نہیں ہے، جماعت حق پر جمنے کا نام ہے، کتاب و سنت، سلف صالحین کے راستے پر جمنے کا نام ہے۔ اس لیے اگر کسی بستی میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں اکیلا ایک آدمی کتاب و سنت، سلف امت کے راستے پر چل رہا ہو، بقیہ سب اس کے خلاف ہو، تو وہ اکیلا ہی جماعت ہے۔ کوئی کہے گا یہ کیا بات ہوئی، اکیلا آدمی جماعت کیسے ہو سکتا ہو؟ تو فرد ہے، تو فرد اور جماعت، یہ فرد اور جماعت کے معنی میں جماعت نہیں ہے، اکیلے اور اکیلے سے زیادہ کے معنی میں جماعت نہیں ہے۔ جماعت اس معنی میں ہے کہ وہ حق پر جمع ہے، حق پر اکٹھا ہے، حق پر ڈٹا ہے، حق پر لگا ہوا ہے۔ سب لوگ ادھر ادھر راستوں پر چل رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی حق پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو جماعت کا تصور یہ ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ اب بہت زیادہ اختلاف یعنی بہت ساری ٹولیاں، بہت سارے دھڑے، بہت سارے فرقے، بہت سارے، ہے نا، احزاب، گروہ، گروپ، پارٹیز، ہے نا، یہ سب کے سب، ان کو آج کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو لوگ اسلامی جماعتیں کہتے ہیں، ان کو اسلامی جماعتیں کہتے ہیں۔ حقیقت میں اس پر یہی اطلاق درست ہے جو نبی کا اطلاق ہے، کہ یہ کثرت اختلاف کا حصہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی کے طور پر اپنی حدیث میں بیان فرما دیا تھا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا،
मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, 72 लोग जहन्नम में जाएंगे, एक टुकड़ा। अब टुकड़ा इस माने में कि अगर पूरी उम्मत यानी उम्मत दावत जो भी मुखातब हैं, अल्लाह की किताब के नबी की सुन्नत के मुखातब हैं, इन सारे इंसानों को अगर हम एक जगह रह करके देखें तो उसमें एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इन लोगों ने अलग हो करके एक को अकेला छोड़ दिया है, इसलिए वो टुकड़ा दिखाई देता है। इस एतबार से उसको फिरका कहा गया, वरना सही मानों में अगर ताबीर इनसे शुरू की जाए तो ये असल है। अगर बताना यहां से शुरू किया जाए, जड़ से बताना शुरू किया जाए, तो वो जड़ है, अलग होने वाले फिरके हैं। लेकिन अगर पूरी तादाद को इकट्ठा रख करके देखा जाए कि ये सब 72 टुकड़े अलग होने वाले हैं, सिर्फ 73वां जो अकेला बाकी बचता है, जो अल्लाह की किताब पर, नबी की सुन्नत पर, सहाबा के तरीके पर चलता है, वही जमात है। तो वो जमात है, इस एतबार से उसको फिरका कहा गया क्योंकि सब ने अलग होकर के उसको अकेला छोड़ दिया। तो असल में जमाअतों का इतलाक ही दुरुस्त नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा बहुत सारा इख्तलाफ देखेगा, लेकिन ऐसी सूरत हाल में उसका इलाज क्या है? यानी बहुत सारा इख्तलाफ देखेगा, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे धड़े बन जाएंगे। इलाज अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी। हदीस बड़ी मशहूर है, तिरमिज़ी और सुनन वगैरह की रिवायत है, सही रिवायत है। और हम लोग बार बार सुनते हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्या बार बार ये रिवायत पढ़ी जाती है, क्या बार बार रिवायत बयान की जाती है। ये वो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़यामत की सुबह तक पढ़ी जाएगी। इतनी अजीमुश्शान हदीस है। आप देखिए, आप सहाबे किराम को जब आए थे, नसीहत करने लगे थे, तो सहाबे किराम रोने लगे, है कि नहीं? ज़रफ़त मिनहल उयून व वजिलत मिनहल क़ुलूब, दिल घबरा गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमें आप वसीयत कीजिए, अहम बातें बतलाइए। ये तो ऐसी बातें हैं, ऐसा लगता है कि कोई रुखसत होने वाला है ना, रुखसत होने वाला, अलविदा करने वाला अपने मातहतों को छोड़ करके जा रहा है, ऐसी वसीयत लग रही है, इसलिए आप हमको समझाइए। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बातें बयान फरमाई थी। आप जानते हैं कि वसीयतें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। वसीयत में लंबी चौड़ी बातें नहीं की जाती, सबसे ज्यादा अहम बात, सबसे ज्यादा बुनियादी बात समझा करके वसीयत की जाती है, और अलविदा करने वाला उसी चीज को बयान करता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था कि जब बहुत ज्यादा इख्तिलाफ रूनमा हो जाएगा तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अपने आप को जमा लेना। यही रास्ता है। यानी क्या मतलब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीका है। आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो लोग जिंदा रहेंगे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेंगे। अब सवाल यह है कि क्या करोगे उन इख्तिलाफात के वक्त में? उन इख्तिलाफात के वक्त में इन सारे इख्तिलाफात को छोड़ करके फिर पलट करके शुरू में आ जाना। जिस तरीका मेरा है, जो तरीका मेरे साथियों का है, मेरे खुलफाए राशिदीन का, उसी तरीके पर आ जाना। ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बतला दी। सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, मेरी सुन्नत, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, दोनों सुन्नतें एक हैं। मेरी सुन्नत जो है वही खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। दोनों सुन्नतों में कोई फर्क नहीं है। सुन्नत सुन्नत रिपीट हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि दोनों तरीके, दोनों सुन्नतें अलग हैं। जो रास्ता नबी का है वही रास्ता खुलफाए राशिदीन का, जो खुलफाए राशिदीन का वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसकी दलील यह है कि आगे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तमस्सकू बिहा, उसको मजबूती से पकड़ लो। उसको, उन दोनों को नहीं बल्कि उसको, सिंगल इस्तेमाल किया। ये जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया, जमीर सिंगल इस्तेमाल की गई, तो इससे मुराद समझ में आती है बात कि जो सुन्नत अल्लाह के नबी की वही खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। अच्छा, ये हर जगह है। वअज़्ज़ु अलैहा, उसको मजबूती के साथ दांतों से जकड़ लो। ये दोनों जगहों पर वही बात कही गई है। बहरहाल, साथ ही साथ जो इख्तिलाफात के दौर में नबी के बाद, सहाबा के बाद जो नई नई बिदतें ईजाद होंगी, उन बिदतों के बारे में भी अल्लाह के नबी ने रहनुमाई फरमा दी अपनी उम्मत को कि उन्हें क्या करना चाहिए। इनसे बच करके रहना, क्योंकि हर नई बात दीन के अंदर बिदत है और हर बिदअत गुमराही है। अब देखें, इस हदीस से
मुसन्निफ ने ये बात वाज़ेह की है, या शेख सालेह फौजान ने, कि इख्तिलाफ जहाँ तक रही बात इस्लामी जमातों की, तो वो इस्लामी जमाअतें, ये कहना दुरुस्त ही नहीं इस्लाम के अंदर। वो तो कसरत इख्तिलाफ का हिस्सा हैं। जमात तो एक ही है। जमात क्या है? एक ही है। कोई दूसरी जमात है ही नहीं इस्लाम के अंदर जो किताब व सुन्नत पर चलने वाली हो। चाहे एक हो, दो हो, 10 हो, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इक्का दुक्का फैले हुए हो, तब भी वही जमात माने जाएंगे। तादाद से मतलब नहीं है, हक की राह से मतलब है। हक पर जमने की वजह से उन्हें मेरे भाइयों जमात कहा जाता है। अब आगे कहते हैं शेख सालेह फौजान, कहते हैं लिहाजा इन जमातों है ना। अब चूंकि लोग जमात कहते हैं, इसलिए वही ताबीर सब हम लोग भी जमात कहते हैं, इस्लामी जमातें, मिल्ली जमातें इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों अकीदे की इस्तिलाह में है ना, मनहज की इस्तिलाह में अगर आप देखेंगे तो सही बात यह है कि जमात का इस्तेमाल सिर्फ एक ही सिंगल ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जो किताब व सुन्नत सलफ़े सालिहीन के रास्ते पर चलने वाले लोग। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब फिरके हैं, इख्तिलाफ कसीर का हिस्सा हैं, उन्हें जमात नहीं कहा जा सकता। वो अहज़ाब हैं, वो फिरक हैं, है कि नहीं, वो टोलियां हैं, गिरोह हैं, ये है। अच्छा, नीचे हाशिए में मुसन्निफ यानी जिन्होंने इस किताब को इकट्ठा किया है, शेख सालेह फौजान के जवाबात को इकट्ठा किया है, यानी शेख जमाल बिन फुरैहान। शेख जमाल बिन फुरैहान कहते हैं बेहतर यह है कि हम किताब व सुन्नत और मनहज सलफ के मुखालिफ तमाम धड़ों को फिरके कहें। क्या कहें? फिरका कहें। मनहज सलफ के खिलाफ जितने भी धड़े हैं सबको क्या कहें? हम सबको फिरका कहें, जमात कहें ही नहीं। क्योंकि जमात का वो माना नहीं है जो लोग समझते हैं। जमात का मतलब एक अकेले के मुकाबले में बहुत सारे लोग, ये माना नहीं। हक पर जमना ये माना है, क्योंकि उनका नाम शरई नाम यही है। इन मुख्तलिफ टोलियों का शरई नाम क्या है? फिरके हैं। अल्लाह के नबी ने फिरके कहा है। उसके बाद कहते हैं जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरकों से मुताल्लिक आने वाली हदीस में उन्हें यही नाम दिया है। रहा मसला जमाअतों का, तो जमाअतें कोई नहीं हैं, जमाअतें कोई नहीं है सिवाय मुसलमानों की जमात की। मुसलमानों की जमात, अब आज वाला इस्लाम नहीं, मुख्तलिफ शक्लों वाला इस्लाम नहीं, वो इस्लाम जो अल्लाह की किताब में उतरा, जो नबी की सुन्नत में है और जिस पर अल्लाह के नबी के सहाबा ताबईन चलते रहे, वो असल वाला इस्लाम। इसलिए सलफियत असल इस्लाम का नाम है। सलफियत सच्चे दीन का नाम है, सलफियत सच्ची किताब का नाम है, सच्ची सुन्नत का नाम है। बहरहाल कहते हैं सिवाय मुसलमानों की जमात के, जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इशारा फरमाया है। ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद शेख सालेह फौजान कहते हैं कि जो लोग मुख्तलिफ, जो पार्टियां हैं, जो मुख्तलिफ फिरके हैं, इनमें से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के तरीके पर कायम हैं, खुसूसन खुलफाए राशिदीन और फजीलत वाली सदियों के नक्श कदम पर गामजन है, इस मनहज तरीके पर जो भी जमात कायम है, हम उस जमात के साथ हैं। यानी क्या मतलब? अब यही बात समझा रहे हैं शेख सालेह फौजान कि इतने सारे मुसलमान हैं, मुख्तलिफ रुख पर चल रहे हैं, मुख्तलिफ धड़ों से जुड़े हुए हैं, है ना। अब उन सारे लोगों में हमें यह देखना है कि कौन अल्लाह की किताब नबी की सुन्नत पर चलने वाला है। जो भी है, एक आदमी है ना, 2 आदमी है, कहीं 2 आदमी है, कहीं 4 आदमी, कहीं 10 आदमी, बकिया सब अलग अलग हैं, तो जो भी इस रास्ते पर चलने वाले हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ। हम कहते हैं कि इससे निस्बत करते हैं और उसके साथ काम करते हैं। तो ये है असल में उसूल और ज़ाब्ता कि हक वालों के साथ काम करना है, हक वालों के साथ काम करना। आज इस मामले में आजकल इतनी ज़्यादा कह लीजिए कि नरमी हो गई है, या कह लीजिए कि मुदाहनत हो गई है, या रवादारी के नाम पर और इत्तेहाद के नाम पर उसूलों को भी बालाए ताक बसा औकात रख देते हैं बहुत लोग, या रख दिया जाता है कि अगर किसी ने सवाल कर लिया कि एक शख्स मिसाल के तौर पर शिया है, राफिजी है, क्या हम उसके साथ दावत का काम कर सकते हैं? एक शख्स मिसाल के तौर पर कब्र परस्त है, मुजावर है ना, चादर चढ़ाने वाला तबका है, क्या हम उसके साथ दावत का काम कर सकते हैं? एक है जो जमात तबलीग है, जिसको जो दौड़ दौड़ करके दावत का काम करती है और मुख्तलिफ लोगों को
नमाज के लिए, इसके लिए, उसके लिए बुलाती है, फजीलत है ना बयान करती है, क्या उसके साथ हम दावत का काम कर सकते हैं? एक वो जमात है जो जमात इस्लामी कहलाती है, इखवानी, क्या हम उनके साथ दावत का काम कर सकते हैं? इस तरह के सवालात के जवाबात में बाज लोग रवादारी के नाम पर, नरमी के नाम पर, उम्मत में इख्तलाफ ना ज्यादा बढ़े, इत्तेफाक पैदा हो, दूरियां कम हो, इस लालच में या इस नीयत से या इस सोच से कहते हैं कोई बात नहीं है, हम उनके साथ दावत का काम कर सकते हैं। आप ये बताइए कि कैसे दावत का काम आप कर सकते हैं? आपका रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है, आपकी शाहराह अलग है और वो पगडंडियों में, गलियारों में है। आप कैसे दावत का काम कर सकते हैं? आप तौहीद वाले हैं, उनके यहाँ शिर्क है, आप कैसे तौहीद की दावत दे सकते हैं उनके साथ में? आपके यहाँ सुन्नत है, उनके यहाँ बिदअत है, कैसे आप उनके साथ दावत का काम कर सकते हैं? आप सारे सहाबे किराम को अपने पेशानी पर सजाते हैं और ये उम्मत के बड़े तबके को, यानी सहाबे किराम की सारी अक्सरियत को, 2-3 को छोड़कर सबको काफिर कहते हैं। आप उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं? आले बैत के सिवा किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो सबको मतऊन करते हैं, आप कैसे उनके साथ दावत का काम कर सकते हैं? आप खालिस किताबुल्लाह, नबी की सुन्नत की तरफ बुलाते हैं, इस मामले में सहाबे किराम तक का तासुब बर्दाश्त करने के लिए आप तैयार नहीं है। किसी से कोई बशरी गलती हो गई है, कोई इज्तिहादी चूक हो गई है, तो हम उस मामले में नबी की सुन्नत को फॉलो करते हैं और उनकी बशरी कमियों को या इज्तिहादों को उनके हवाले कर देते हैं, अल्लाह से दुआए मगफिरत करते हैं। और वो उम्मत के सहाबा नहीं, ताबईन नहीं, बल्कि बहुत बाद के लोगों को अपना पेशवा बना रखा है, उनकी तकलीद करते हैं, उनकी अंधी तकलीद करते हैं। आपका रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है, आप कैसे उनके साथ दावत का काम कर सकते हैं? है कि नहीं? आप किताब और सुन्नत को असास मानते हैं, किताब और सुन्नत को अल्लाह के नबी के सहाबा की फहम के मुताबिक समझना अपना दीन समझते हैं, और वो फलां को अपना पेशवा बना रखा है, फलां की लॉजिक को, फलां की अक्ल को, फलां की दानिश्वरी को, फलां की जहानत और फतानत को, है ना, बुनियाद बना करके उसी की दावत देता है, उसी की नशो इशात करता है। आपका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। आप बताइए कैसे उनके साथ आप दावत का काम कर सकते हैं? बहुत मोटी बात है मेरे भाइयों। सिर्फ रवादाराना बात करने से काम नहीं चलेगा, ये तो उसूल है, उसूल। और जब तक उसूलों में यकसानियत नहीं होगी, याद रखें, कभी भी इत्तिहाद नहीं हो सकता। इत्तिहाद के लिए जरूरी है कि उसूलों में इत्तिहाद हो। जब जड़ एक हो जाएगी तो ऊपर सब एक हो जाएगा, लेकिन जड़ ही अलग रहेगी तो ऊपर शाखों को मिलाने से और पत्तों को इकट्ठा करने से कोई इत्तिहाद नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बुनियादी चीज है जो शेख सालिह फौजान समझाना चाह रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत सलीस बात कह रहे हैं कि जो भी दुनिया के अंदर इतने सारे फिरके टोलियां हैं, हम एक उसूल बयान कर रहे हैं। शेख सालिह फौजान एक उसूल बयान कर रहे हैं, जो भी अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत, साहबे किराम के तरीके पर चल रहा है, वो मुसलमानों की जमात है, वो जमात है, वो अहलुस सुन्नत है, वो अहलुस सुन्नत वल जमात है। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ जुड़ करके काम करते हैं। ये उसूल है। अब जाकर के देखो कितने कितने फिरकों का नाम लेकर के वो बताएंगे आपको, हमको, कि ये अहले सुन्नत में से हैं कि नहीं, ये जमात कहला सकते हैं कि नहीं, ये जमात कहला सकती है कि नहीं, ये फिरका जमात कहला सकता है कि नहीं। इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने एक आम बात समझा दी। और जो भी जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है, हम उससे इज्तिनाब करते हैं, हम उससे इज्तिनाब करते हैं, गरचे उसका नाम इस्लामी जमात हो। नाम इस्लामी जमात, नाम क्या है? इस्लामी जमात है, लेकिन चूंकि वो खिलाफ है अल्लाह के नबी के तरीके के, साहबे किराम के तरीके के, इसलिए हम क्या करते हैं? हम उनसे इज्तिनाब करते हैं, क्योंकि एतबार नामों का नहीं है, हकीकतों का है। एतबार किसका है? हकाइक का एतबार है, नाम का एतबार नहीं है, टाइटल का एतबार नहीं है, बैनर का एतबार नहीं है मेरे भाइयों, स्लोगन का एतबार नहीं है। किताबो सुन्नत, किताबो सुन्नत, किताबो सुन्नत की रट्टी तो हर लगाता है, लेकिन इन नामों से का एतबार नहीं है, बल्कि एतबार हकीकतों का है, जड़ों का है, उसूलों का है, बुनियादों का है, कि वो किस चीज को फॉलो करते हैं, उनका उसूल और ज़ाब्ता क्या है। नाम तो बसा औकात भारी भरकम होते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता, बल्कि बसा औकात वो बातिल होते हैं। ऐसा कितना होता है। उसके बाद शेख सालिह फौजान ने, हाफिज़हुल्लाह ने,
وہ روایت جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، ہے نا، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور ایک کے سوا سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، ایک کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی من ہیا، اے اللہ کے رسول یہ کون سی جماعت ہے؟ قال فرقہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من کان علی مثلی ما علیہ اليوم واصحابی، من کان علی مثلی ما علیہ اليوم واصحابی، جو لوگ اس طریقے پر یا اس جیسے طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر آج میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ اسی ٹکڑے کی حدیث کے اسی ٹکڑے کی روشنی میں شیخ صالح فوزان نے وہ جواب دیا کہ ساری دنیا میں جتنے بھی دھڑے، فرقے، ٹولیاں، گروہ کام کر رہے ہیں، ان سب میں سے جو اس راستے پر چل رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ ہمارے راستے پر چل رہے ہیں، اور ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر، آپ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے سمجھائی، تو کہتے ہیں راستہ بالکل واضح ہے، راستہ بالکل واضح۔ یہ سوال کی دوسرے شق کا جواب تب چل رہا ہے۔ پہلی شق میں یہ تھا کہ کیا اسلامی جماعتیں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ان کے ساتھ کام کرنے کا کیا حکم ہے، ان کے ساتھ جانے کا کیا حکم ہے، ان میں شریک ہونے کا کیا حکم ہے، ان سے جڑنے کا کیا حکم ہے، اس کا یہ سب جواب ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں راستہ بالکل واضح ہے۔ راستہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے۔ جس جماعت میں یہ علامت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جس جماعت میں یہ علامت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جو جماعت بالکل اسی طریقے پر ہوگی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، وہ جماعت حقہ ہے، وہ اسلامی جماعت حقہ ہے۔ تو یہ بہت اصولی بات ہے، اور اس مسئلے میں جو سرسری طریقہ چلتا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، سرسری طریقہ نہیں درست ہے۔ اب تو جتنے لوگ بھی اسلام سے نسبت رکھتے ہیں، چاہے وہ اندر کچھ بھی بیان کرتے ہوں، ہے نا، کوئی اہل بیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی تصوف کی طرف بلا رہا ہے، کوئی قبر پرستی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی شخصیت پرستی کی طرف بلا رہا ہے، ائمہ پرستی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی تقلید جامد کی طرف بلا رہا ہے، کوئی عصبیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی امت کے اماموں اور اولیاء کی طرف بلا رہا ہے کہ نہیں، کوئی اپنی اور اپنے بڑوں کی عقلوں کی طرف بلا رہا ہے، ان کی لاجک کی طرف بلا رہا ہے، یہ سب حقیقتیں ہیں ان کی، اس لیے اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ صاف بات ہے، اسلامی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والی جماعت ہے۔ تو آج جو ہم لوگ کہتے ہیں نا اسلامی جماعت یا مسلم جماعتیں، ہے نا، اس میں سب کچھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک حالات کی یہ حالات اور ظروف کے اعتبار سے ایک تعبیر ہے، ایک تعبیر ہے، بیان کرنے کا، بولنے کا ایک انداز ہے۔ اصول کی روشنی میں، منہج کی روشنی میں یہ تعبیر بالکل بھی فٹ نہیں ہوتی۔ جب ہمیں عمل کرنے کی بات آئے گی، ہے نا، عملی طور پر لگنے کی بات آئے گی، دعوت کی بات آئے گی، مشن کے طور پر آگے بڑھانے کی بات آئے گی، تو یہ تعبیر جو سرسری طور پر سارے لوگوں کو مسلم جماعت کہہ کر کے ہم، ہے نا، سنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ تعبیر درست نہیں ہوگی۔ اصل یہ ہے میرے بھائیوں، اسلام سے نسبت رکھنے والی جماعتیں تو ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جو ناجیہ طبقہ ہے، ناجیہ نجات یافتہ، نجات پانے والا، جہنم سے نجات پانے والا، جنت جانے والا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی نے جو تعبیر فرمائی ہے، اس اعتبار سے یہ تعبیر، عمومی تعبیر، سرسری تعبیر درست نہیں ہے۔ اس سے بہرحال اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے حالات میں، اپنے ظروف میں، دنیا میں، ملک و ملت میں، ٹھیک ہے جتنے لوگ بھی اسلام سے نسبت رکھتے ہیں، اسلام سے اپنا رشتہ بتلاتے ہیں، وہ اسلامی جماعت کے طور پر جانے جائیں گے، لیکن عملی طور پر ان سے جڑنا، ان کے ساتھ دعوت کا کام کرنا، ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کے ساتھ ساتھ چلنا، ان کا ممبر بننا، اس کے مشن کو آگے بڑھانا، جب اس دائرے میں آ کر کے ہم بات کریں گے تو ما انا علی، کیا کہا، من کان علی مثلی ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ تو پتہ یہ چلتا، اس سے معلوم پڑتا ہے صاف صاف کہ کئی ایک دھڑے جن کی تعداد 72 ہے کہ نہیں، نسبت اسلام سے کریں گے، لیکن وہ ما انا علیہ اليوم واصحابی پر عملی طور پر نہیں اتریں گے۔ اس لیے ہمیں یہ فرق بہرحال
उसूली तौर पर जानना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं रहा वो जो इस मनहज का मुखालिफ हो, दूसरे मनहज पर चले, तो वो हम में से है ना हम उनमें से है। ना वो हम में से है ना हम उनमें से है। हमें उनसे निस्बत है ना उसे हमसे कोई निस्बत है। ये उसूल है। उसके बाद कहते हैं ना ही उसे जमात का नाम दिया जाएगा, उसे जमात का नाम भी नहीं दिया जाए। इसलिए कि बात तय हो चुकी है पहले कि जमात एक के मुकाबले में ज्यादा का नाम नहीं है। जमात नाम है हक पर जमा होने का, हक पर मुत्तफिक रहने का, यह है माना। बल्कि उसे गुमराह फिरकों में से एक फिरका शुमार किया जाएगा। अच्छा, जब गुमराह फिरका कहा जाता है तो लोग जल भुन जाते हैं, अपने लोग भी बहुत भारी समझते हैं, बहुत भारी समझते हैं कि यार गुमराह फिरका कह दिया गया। गुमराह फिरके का क्या मतलब होता है? गुमराह फिरके का मतलब ये होता है कि जो रास्ता है ना, रास्ता, उस असल रास्ते को खोया हुआ है ये फिरका। उस असल रास्ते से ये फिरका क्या है? भटका हुआ है, दाएं तरफ माइल हो गया है, बाएं तरफ माइल हो गया है, उस असल रास्ते पर नहीं है। अब कोई ज्यादा दाएं बाएं माइल हो गया है, कोई कम दाएं बाएं माइल हुआ है, कोई बहुत ज्यादा माइल हो गया है, इस एतबार से इसको गुमराह कहा जाता है। इसीलिए शेख सालेह फौजान ने यहां भी इसके अलावा भी दूसरे सवालात के जवाबात में कहा है कि फिरक ज़ाल्ला कहने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। गुमराह यानी असल रास्ते से भटके हुए हैं, कोई कम भटका है, कोई ज्यादा भटका है। कुरान का नाम लेते हैं, सुन्नत का नाम लेते हैं, सहाबा का नाम लेते हैं, लेकिन इन चीजों में जो उसूल बरतना चाहिए उन उसूलों पर पूरे तौर पर नहीं उतरते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। हाँ, कोई कुफ्र का हुक्म लगाए कि ये जमात काफिर है, ये जमात जहन्नमी है, ये जमात मुशरिक है, ये बिल्कुल हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन अल्लाह कहना, गुमराह कहना, इसमें कोई हरज की बात नहीं। यानी रास्ते से हटे हुए हैं, कोई कम हटा है, कोई ज्यादा हटा है, ये है मतलब। तो बहरहाल कहते हैं इसे गुमराह फिरकों में से एक फिरका कहा जाएगा, क्योंकि जमात तो हक ही पर कारबंद होती है। जमात कौन होती है? जो हक पर कारबंद रहे, हक पर डटी रहे, यह है जमात। क्योंकि हक ही पर लोग इकट्ठा और मुत्तहिद होते और हो सकते हैं, जबकि बातिल तो तफरीक पैदा करता है। बातिल क्या करता है? तफरीक पैदा करता है, इकट्ठा नहीं करता, जमा नहीं करता, बल्कि तफरीक पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम की कलाम की आयत करीमा पेश करते हैं, सही सूरह बकरा की आयत नंबर 137, व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक। अल्लाह ने क्या फरमाया? अगर ये लोग पीठ फेर लें, अगर ये लोग क्या करें? पीठ फेर लें, एराज करें, मुड़ जाएं, फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो ये लोग इख्तिलाफ में हैं। ये लोग कहां हैं? इख्तिलाफ में हैं, फिरकाबंदी में हैं। तो अगर मुंह मोड़ेंगे असल रास्ते से तो लाजिमन एक धड़ा बन जाएगा। अब अगर सीधे रास्ते पर चलते चले जाते तो कोई फिरका नहीं बनता, कोई धड़ा नहीं बनता। लेकिन एक इधर दाएं निकला, एक धड़ा बन गया, एक दूसरी तरफ बाएं तरफ निकला, धड़ा बन गया, एक और थोड़ा सा आगे जाकर के दाएं तरफ चला गया, धड़ा बन गया, एक और आगे जाकर के बाएं तरफ निकल गया, धड़ा बन गया। अगर उसी रास्ते पर चलते चले जाते तो कोई धड़बंदी नहीं होती। तो ये शेख सालेह फौजान इस मसले को समझा रहे थे इस सवाल के जवाब में। बहरहाल मेरे भाइयों, ये एक सवाल और उसका जवाब था, जिसमें मैं समझता हूं कि चंद उसूली बातें शेख सालेह फौजान हाफिज़हुल्लाह ने हमारे सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, खासतौर पर उम्मत के हर तबके को, खुसूसियत के साथ नौजवानों को, जो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्रमंद रहते हैं, बहुत ज़्यादा नशीत हैं, बहुत ज़्यादा चाको चौबंद हैं, और तलाश और जुस्तजू अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अल्लाह ताला उनको इन उसूलों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।